नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूएसएमसी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनमोल। पहले हम नजर डालते हैं इस हफ्ते की उन खबरों पर जो चर्चा में बनी रही। नागालैंड में सुरक्षा बलों के एक आतंक विरोधी ऑपरेशन में गलत पहचान की वजह से 14 स्थानीय लोगों की मौत। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर अभी भी गंभीर, ज्यादातर इलाकों में AQI 300 के पार। कृषि कानून वापसी बिल लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी पास। कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दी भारत में दस्तक। एक बार फिर कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए नोएडा में लगाया गया धारा 144। दिल्ली में एक लंबे अंतराल के बाद खुले सिनेमा हॉल और शिक्षण संस्थान। अगले साल 2022 में होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग के लिए हुआ रिटेंशन प्रोसेस। आइए अब बात करते हैं विस्तार से। लेकिन इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है तमिलनाडु से, जहां देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई है। अब आइए जानते हैं पिछले हफ्ते की खबरों को विस्तार से। शुरुआत करेंगे हम नागालैंड से, जहां सुरक्षा बलों के एक आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन में गलत इंटेल की वजह से 14 लोगों की मौत हो गई थी। इसी पर हमारे संवाददाता ऋत्विक की यह खास रिपोर्ट देखिए। On 4th of December Saturday, an incident took place in the Oting village of Mon district, Nagaland, where a counter-insurgency operation went horribly wrong. It was led by the Assam Rifles, which is also one of the paramilitary forces of the Indian Army. The incident led to the death of 14 civilians of the district. According to the Indian Army, the soldiers were responding to credible intelligence input about the movement of the separatist group guerrillas. The soldiers opened fire on a truck carrying coal miners to their village. The army maintains the botched up operation as an incident of mistaken identity and was a fallout due to lack of cooperation from the local people. According to experts, it is said that most of the blame lies on the omnibus protection provided to the Security Forces Special Power Acts known as ASPA. ASPA is a controversial anti-insurgent law which gives the security forces power of search and seizure at any moment. It also allows protection to the soldiers who may kill a civilian by mistake or in any unavoidable situation. Indian Home Minister Amit Shah, responsible for domestic security, has expressed deep anguish over the incident, and the Nagaland state government has promised a high-level inquiry led by a special investigation team also known as SIT. तो ये देखा आपने नागालैंड से हमारी खास रिपोर्ट। और अब हम आगे बढ़ते हैं खबरों में। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर अभी भी गंभीर बना हुआ है और लोगों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी पर हमारी संवाददाता निदा ने लिया परिस्थितियों का जायजा। According to the System of Air Quality and Weather Forecasting and Research, the AQI is clocking to 328 in the National Capital Region, Delhi. The people of Delhi are not getting relief from the poisonous air, and it is becoming a matter of great concern. Right now I am present in Dwarka and you can see the smog here. Due to slow wind speed, the situation is still dire. Delhi Environment Minister Gopal Rai has banned all the non-essential trucks till further orders. Talking about the present situation, the temperature has dropped, the cold has increased, and eventually the pollution has increased too. The people of Delhi did not get much relief from the rain that happened last week. The AQI of most areas are above 300. The rising pollution every year is becoming a matter of great concern, which needs some concrete solution. तो देखा आपने कि दिल्ली में अभी भी लोगों को प्रदूषण से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। बहरहाल हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और केंद्र सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए विधेयक पारित कर दिया है। इस पर हमारी संवाददाता निधि की यह खास रिपोर्ट देखिए। Prime Minister Narendra Modi on 20th of November, while addressing the nation, announced the repealing of the 3 contentious farm laws. He said that they tried their best to explain the benefits of the laws to the farmers, but since no positive outcome has been received, they have decided to repeal the laws. The Parliament passed the law on the very first day of its winter session without any debate. The news has sent a wave of joy among the farmers and across the country.
Additionally, the news comes at the time when the state elections are going to be held in UP, Uttarakhand and Punjab. However, the central government is denying any such claims. तो अभी भी इस पर राष्ट्रपति की मुहर लगनी बाकी है, जिसके बाद तीनों कृषि कानून वापस हो जाएंगे। और अब आगे बढ़ते हैं। कोरोना जैसे खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के रूप में दस्तक दिया है। आइए देखते हैं सागर की यह रिपोर्ट। ओमिक्रॉन, जिसका पहला केस दक्षिण अफ्रीका में पाया गया, जहां पर इससे संक्रमित 2 लोग थे, लेकिन आज इसकी पहुंच शेष विश्व में कई जगह पर हो गई है। अगर हम बात करें दक्षिण अफ्रीका सहित करीब 35 देशों से ऊपर देशों में यह वायरस फैल चुका है। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में भी यह वायरस कई जगह देखा गया है, जैसे कर्नाटक, राजस्थान और जहाँ तक कि हमारी राजधानी दिल्ली में भी यह वायरस आ चुका है। अब यह देखना इसमें अति आवश्यक है कि सरकार इससे लेके आगे क्या कदम उठाती है और क्या दिशा निर्देश जारी करती है। लेकिन हमको अब सावधानी बरतने की जरूरत है और इसमें सतर्कता लाने की जरूरत है, क्योंकि ओमिक्रॉन सामान्य कोरोना वायरस से 5 गुना अधिक तीव्र है। तो ऐसे में सावधानी बरतना बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। और अब कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए नोएडा में एक बार फिर से धारा 144 लगा दी गई है, जिस पर परिस्थितियों का जायजा लिया हमारी संवाददाता शिवानी ने। Here is the news from Noida City. Keeping in mind the ongoing pandemic situation and the Omicron variant, the Gautam Budh Nagar Police has extended the imposition of Section 144 in the entire city of Noida, Uttar Pradesh. Notably, these restrictions have been imposed ahead of Christmas and New Year celebrations in the month of December. As per the orders, malls and gyms will function at 50% of capacity, while social gatherings are restricted without any official permission. Police officials have also given strict instructions to follow the COVID-19 protocol at all public places. It is mandatory for all to wear masks and maintain social distancing. Meanwhile, order has also stated that due to the upcoming assembly state elections in the Uttar Pradesh state, the chances of chaos by antisocial elements cannot be ignored. तो ये देखा आपने कि नोएडा में 144 धारा लगा दी गई है, और वहीं दूसरी तरफ अगर हम दिल्ली में बात करें तो सिनेमा हॉल और शिक्षण संस्थान एक लंबे अरसे के बाद पूरी क्षमता के साथ खोले जा चुके हैं। इस पर देखते हैं हिमांशी की यह रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे और मैं हूं आपके साथ हिमांशी। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सिनेमा हॉल्स को 100% कैपेसिटी के साथ खुलने की इजाजत दी। पिछले साल 2020 में कोरोना के चलते भारत सरकार ने देश भर में कोविड लॉकडाउन का ऐलान किया, जिससे लंबे समय तक मल्टीप्लेक्सेस और सिनेमा हॉल्स के ऊपर ताला लगा। डीडीएमए की इस अनाउंसमेंट से बॉलीवुड फैंस काफी खुश नजर आए। बॉलीवुड फैंस जो काफी समय से बड़े पर्दे पर फिल्म देखने का इंतजार कर रहे थे, उन्हें एक राहत की उम्मीद मिली। इसके अलावा बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स इस न्यूज से काफी खुश आए, क्योंकि जो बड़ी बजट की फिल्में काफी समय से रिलीज होने के लिए वेट कर रही थी, उनको एक रिलीज डेट मिली। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कोविड के बाद बॉलीवुड को कितना नुकसान या कितना फायदा हुआ, ये हम आपको बताएंगे अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए हमारे साथ ऑन न्यूज़ टुडे। थैंक यू। तो दिल्ली में सिनेमा हॉल्स के साथ साथ शिक्षण संस्थान भी खुल चुके हैं, जहां पहुंची हमारी संवाददाता आकांक्षा। नमस्कार, आज हम आए हैं नवीन शादरा के कोचिंग सेंटर में, जिसका नाम है क्लासिक ट्यूटोरियल्स। आइए जानते हैं यहाँ के बच्चों और टीचर्स से कि इतने समय बाद उन्हें ऑफलाइन मोड में पढ़ने में कैसा लग रहा है। पहले आप हमें बताएं, आप वैक्सीनेटेड हैं या नहीं? यस मैम, आई एम टोटली वैक्सीनेटेड। ओके सर, क्या क्या स्टेप्स लिए हैं स्टूडेंट्स की सेफ्टी के लिए यहाँ पे? हम देखो, जब बच्चे इंस्टीट्यूट में एंट्री करते हैं तो उनको पहले उनके हैंड्स को सैनिटाइज करवाते हैं। हमने सबको रिस्ट्रिक्शन दे रखी है कि सबने मास्क लगा के क्लास में बैठना है, थोड़ा दूरी पे बैठना है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। तो जितने प्रिकॉशन ले सकते हैं हम अपनी तरफ से लेते हैं हम जरूर। हाँ, अपना नाम बताएं आप। अपूर्वा जैन। तो अपूर्वा, आपको कैसे पढ़ना अच्छा लग रहा है? अभी ट्यूशन आकर पढ़ना अच्छा लग रहा है या ऑनलाइन मोड में अच्छा लग रहा था? ऑफलाइन में आके ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब सब कुछ विजुअल है और उसमें ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता था ऑनलाइन में। अब ऑफलाइन में सब कुछ समझ में आता है अच्छे से। थैंक यू।
तो देखा आपने कि एक लंबे अरसे बाद हमारी ज़िंदगी धीरे धीरे अब पटरी पर लौट रही है, लेकिन अभी भी हमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और अब खबर खेल जगत से। 2022 में होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग के लिए रिटेंशन प्रोसेस हुआ, जिस पर विस्तार से बताएंगे हमारे संवाददाता राहुल। अगले साल 2022 में होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग के लिए रिटेंशन प्रोसेस 30 नवंबर को आयोजित कराया गया, जिसमें 2 नई फ्रेंचाइजीज जो कि लखनऊ और अहमदाबाद की टीमें हैं, उन्हें छोड़ के सभी 8 टीमें शामिल हुई। इन 8 टीमों को मौका दिया गया कि वो अपनी टीम से 4 खिलाड़ी रिटेन कर सके। जहां कई फ्रेंचाइजीज के लिए ये रिटेंशन प्रोसेस काफी ज्यादा आसान और सरल होना चाहिए था, उन्होंने कुछ ऐसे निर्णय लिए जिसने सभी को चौंका दिए। जैसे कि दिल्ली कैपिटल्स ने अपने पूर्व कप्तान श्रेयस अय्यर को इस साल रिटेन नहीं करा। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद ने भी 2 अपने सबसे दिग्गज खिलाड़ी राशिद खान और डेविड वार्नर को रिटेन न करने का मन बनाया। वहीं 5 बार की विजेता टीम मुंबई इंडियंस ने भी हार्दिक और कृणाल पांड्या को उनकी फॉर्म में गिरावट के चलते इस साल रिटेन नहीं करा। वहीं भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज और पंजाब किंग्स के कप्तान KL राहुल ने भी खुद को मेगा ऑक्शंस के लिए उपलब्ध कराया। अब उनके साथ साथ स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक, सुरेश रैना, बेंगलोर की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल और कोलकाता को फाइनल में पहुंचाने वाले कप्तान ओवेन मॉर्गन भी मेगा ऑक्शंस का हिस्सा होंगे। इस रिटेंशन प्रोसेस से ये तो साफ हो गया है कि अब दोनों ही नई फ्रेंचाइजीज लखनऊ और अहमदाबाद को कोर बेस टीम बनाने का मौका मिल जाएगा। तो ये थी इस हफ्ते की खास खबरें। अब मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ नई खबरों के साथ। आप बने रहिए USMC न्यूज के साथ। धन्यवाद।